All right. Good evening, everyone. So in Infinite Academy, we have yet another speaker with us who's professionally a data scientist in Wipro Technology. She's MTech in data science and analytics and a trained classical Odissi dancer. Also, she's course coordinator and mentor for girls in Geeta Quest. So Geeta Quest is now kind of organization, and she will tell us more. What is Geeta Quest all about, and wherein they are propagating the lessons of Gita. So that's about Gita Quest, and she has been learning. She has been learning as well as sharing Gita teachings from past 7 years. So I thought, why not have Devyani with us and get the essence of Gita, lessons, and apply it in our lives so that our lives, become better, so that we make lesser mistakes and we lead more purposeful life on this world, on this earth, on this planet, the life which is so precious, which has been given to us. So welcome, Devyani. Welcome to you on this journey. Thank you so much, Sadhana ji, for inviting me to your channel and for allowing me to speak on Bhagavad Gita. Really thanks for your invitation. You really have a very positive vibe. You're emanating that positivity. So I'm getting curious. How much is that Gita is responsible for your light and aura there? So tell me something about your journey, Devyani. Yes, whereas like you have already introduced. So currently, like I'm professionally working as data scientist, and I'm completely into data science and analytics and machine learning field. So basically, when I was in school, maybe 10, 11 years back, and I was preparing for my entrances for BTech, and actually at that time I had many questions in my mind. So, preparing for the BTech entrance, that JEE, and like, I'm not sure how many of us who are here, they have heard of like IIT preparation and getting into the hostels and all of those things. So I was completely into that. And at that time, I used to think like, I'm studying very hard, but what I'm going to get? I mean, what is the ultimate result? Because ultimately we are all going to die. So this was my basic question, that right now I'm studying very hard. I'm getting into the hostel. My parents are just paying so much fees for the institutes, for the coaching centers. I'll study, then in the college I'll get an admission. Then I've heard from the people who are senior to me, they have been telling me that even if you get into the IIT colleges, then there is, like a lot of rat race in getting the campus placements. Then, so it was like coming into my mind that ultimately, after I'll even go into some good, after college, even if I'll get some placement in a company, then again, I've seen my parents both are working. My father is doctor and my mother is in government job. So I've seen them like working like anything in their lives. And so, the basic question in my mind was like, why we are doing so many things, why just we are putting in so much hard efforts. तो अल्टीमेटली क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं है कि हम क्लेम कर सकते हैं कि यस अल्टीमेटली आई हैव टू डाई, अल्टीमेटली मैं पूरी लाइफ जीऊंगा, मैं सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी एज लाइक आई एम एटर्नल, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर. मेन रियलिटी इज कि एक ना एक दिन वी हैव टू फेस द अल्टीमेट ट्रुथ. तो मेरे माइंड में ये बहुत क्वेश्चंस आते थे, तो कि मुझे इतनी पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही है, और एंड व्हाई आई एम इन दिस सिचुएशन, कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे इतना बर्डन मिल रहा है. एंड तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते थे. एंड मैं उनके बारे में बहुत सारी लाइक फिलोसफिकल बुक्स भी रेफर करती थी उस टाइम पर. मैंने कितनी बुक्स नहीं पढ़ी, मतलब लिटरली. एंड देन फाइनली मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे, that what is there beyond death,
एंड हम अभी जो करंटली लाइफ भी जी रहे हैं उसको किस तरीके से जिया जाए कि इट इज लाइक वर्थ लिविंग, कि हम कुछ कर रहे हैं एंड उसका अल्टीमेटली कुछ ना कुछ फ्रूट है। इट इज नॉट लाइक ये लाइफ खत्म हुई एंड एवरीथिंग इज वैनिश्ड, इतने सारे एफर्ट्स जो दिए, इतनी सारी जो मेहनत की, वो सब खत्म एक बारी में। तो बाद में जाके मुझे देयर वाज सम अ पर्सन एंड ही हैंडेड ओवर भगवद गीता टू मी ऑन रोड, and वो भगवद गीता, then I started reading it. It was Bhagavad Gita as it is, एंड वो भगवद गीता फिर मैंने ग्रेजुअली रीड करनी स्टार्ट करी, तो मैं अपने स्कूल के साथ साथ एंड अपने उसके बाद मैं ग्रेजुअली एंट्रेंस भी दिया, मैं कॉलेज में भी मेरा एडमिशन हुआ, तो ग्रेजुअली मैंने भगवद गीता को पढ़ना स्टार्ट किया। और आई फॉर्चुनेटली आई गॉट वेरी गुड मेंटर्स ऑल्सो, जिन्होंने मुझे कैसे भगवद गीता को एक्चुअली अप्लाई भी करना लाइफ में ये समझाया। क्योंकि मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हम भगवद गीता को पढ़ते हैं एंड पूरा रीड कर लेते हैं। So I think we have Atharv and Rahul here also. So Atharv and Rahul, like, have you ever tried reading Bhagavad Gita before? Or have you heard of Bhagavad Gita or familiar with Bhagavad Gita? I think we are all in your life's journey. This is the common journey which we all have. We always are put through this tough situation, you know. अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल करना है, पढ़ाई करनी है, एंट्रेंस क्लियर करना है, और देन यू नो देन मे बी यू कैन लीड अ डिग्निफाइड एंड डिसेंट लाइफ। सो हम सभी उसी स्टोरी को बिलोंग करते हैं। सो वेरी मच, प्रीटी मच। सो Yeah, exactly. So I was very fortunate. I got very good mentors जिन्होंने भगवद गीता मुझे लाइफ में हेल्प भी करी अप्लाई करने में। And currently, even तो मुझे I have actually felt a big transformation in my life, in my heart, especially in handling the situations. एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं by remembering any verse from the भगवद गीता। तो भगवद गीता को अगर हम देखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें हर वर्स से हम कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो भगवद गीता का हम वैसे कंसेप्शन देखते हैं यूजुअली आजकल कैसा है कि हमें स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में कोई डिपार्टमेंट तो भगवद गीता का नहीं मिलता। हमें कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं मिलता जो कि हमें स्पिरिचुअलिटी को सिखाए। तो भगवद गीता इज अ बुक विच इज कंप्लीटली रिच इन नॉलेज, इट इज सो प्रेशियस, लेकिन स्टिल वी आर इन सच अ अनफॉर्चुनेट स्टेट कि हमें भगवद गीता को जानने को नहीं मिलता एंड हमें ये पढ़ाया नहीं जाता। हमारा पूरा लाइफ लाइक 18 ईयर्स स्कूल, देन नेक्स्ट 4 to 6 ईयर्स हमारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, बट हमें स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा भी कुछ आइडिया नहीं दिया जाता। बट somehow now the situations are actually थोड़ी better हो रही हैं, and I have actually seen कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नाउ भगवद गीता को एज अ कोर्स उनके कोर्स स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है। फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी एंड येल यूनिवर्सिटी। तो ऐसे हम बहुत सारे कॉलेजेस की भी बात करें, इवन इन आर्मी इफ आई से, जस्ट लाइक 2 days बैक आई हैव रेड इन न्यूज़पेपर दे आर इंट्रोड्यूसिंग भगवद गीता इन आर्मी एज वेल। तो हम भगवद गीता देखेंगे, इट्स लाइक नॉट एन ऑर्डिनरी बुक और नॉट एन ऑर्डिनरी लिटरेचर। तो भगवद गीता इज अ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर जो हमें आर्ट ऑफ लिविंग प्लस आर्ट ऑफ डाइंग दोनों चीजें सिखाता है। तो हम देखेंगे कि अर्जुन जो थे, बहुत बारी लाइक ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि भगवद गीता जो है ये अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अभी तो पढ़ाई करो और ये सब बुढ़ापे की चीजें हैं। तो और ये मुझे भी बहुत क्वेश्चंस आते थे, इवन आई यूज्ड टू स्टडी इट। तो मेरे नेबर्स, मेरे क्लासमेट्स, इवन नाउ, इवन अभी भी लाइक मेरे ऑफिस में, कॉर्पोरेट में सारे जो मेरे कलीग्स हैं वो अभी भी ये यूज करते हैं कि व्हाई आर यू स्पेंडिंग टाइम इन रीडिंग भगवद गीता, इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ भगवद गीता, इट्स ऑफ नो यूज, ये बुढ़ापे के लिए रखो, तब क्या करोगे रिटायरमेंट के टाइम। तो मेन थिंग इज कि भगवद गीता एक्चुअली रिटायरमेंट के लिए है ही नहीं। भगवद गीता इज बेसिकली इट्स आर्ट ऑफ लिविंग, इट टीचेस द आर्ट ऑफ लिविंग। एंड हम लाइफ कब जीते हैं? जब हम एक्चुअली 16 to 40 ईयर्स की एज में होते हैं। तो उस टाइम पर अगर हमें ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे हमारे डिप्रेशन, हमारी एंजाइटीज, हमारा स्ट्रेस कम हो जाए, या हमें ये समझ में आ जाए कि हम मॉरली क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी, एंड इनफैक्ट हम अपनी ड्यूटीज को कितना परफेक्टली कर सकते हैं, वेदर वी आर इन ऑफिस, whether we are a student, we are studying to crack a particular entrance,
और इन वॉट एवर लाइक वी आर हाउस वाइफ और हम कोई भी प्रोफेशन में हो, तो हमें भगवत गीता से ये बहुत अच्छे से पता चलता है कि हाउ टू परफेक्टली एग्जीक्यूट आवर ड्यूटीज। So, हाँ यस साधना जी। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आपने पढ़ा, आपको उसमें पावर मिला, उसमें सच्चाई दिखी आपको, द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ इनफैक्ट आपको समझ में आया, लेकिन उसके बाद आपने ये मासेस को मासेस के साथ शेयर करने का कब सोचा और कैसे सोचा और क्यों सोचा? जैसे अभी आप गीता क्वेस्ट में कोऑर्डिनेटर हैं एंड यू आर स्प्रेडिंग द मैसेज टू यंग गर्ल्स, सो वो कब आपने डिसाइड किया? वो कब इतना लेवल पे कैसे आ गया? जैसे अभी आपको सब कह रहे हैं कि ये अभी का काम नहीं है, ये बुढ़ापे का काम है, तब आप पढ़ना, तब सिखाना, तो वो आपने डिसीजन कब लिया? क्योंकि ये एक बहुत ही यंग फेज में ये होता है कि अभी हमें काम करना है, पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, फिर बच्चे और घर खरीदना है, ये सारी चीजें हैं जो कॉमन इंडियन जो थोड़ा भी अपने आप को समझता है कि हार्ड वर्किंग है, सक्सेसफुल है, ये उसकी जर्नी होती है। फिर आपने कहाँ पे ये डिसाइड किया कि मेरी जर्नी थोड़ी हटके होगी और मैं गीता को सिखाऊंगी लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को? वो कब ये डिसाइड तो किया? कॉलेज से ही मतलब आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग भगवत गीता इन माई लाइफ। तो मुझे जैसे जैसे जो जो चेंजेस दिखते थे, तो तब तो शॉर्ट मतलब बहुत स्मॉल लेवल पर मेरे फ्रेंड्स या मेरे क्लासमेट्स को मैं कम्युनिकेट करती थी। एंड देन ग्रेजुअली हमने थोड़े कॉलेज में एक क्लब्स काइंड ऑफ भी बनाए, इसमें कुछ कुछ लोग आते थे एंड हम थोड़ा भगवत गीता के बारे में डिस्कशंस करते थे। एंड उसके बाद ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि वो थोड़ा लार्ज स्केल पर होने लगा। एंड तो ऑफलाइन फिर हम लोग ऐसे ही कंडक्ट करते थे, लाइक फिजिकली देवर क्लासेस जो भगवत गीता की होती थी, और साथ के साथ उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है हम वो भी हेल्प करते थे। तो ऐसे ही डिस्कशन स्मॉल स्केल से वो बहुत लार्ज स्केल पर हो गया। एंड हम देखेंगे कि खाली गर्ल्स ही नहीं, इसमें बॉयज भी बहुत ज्यादा involved in, and they are also helping the young boys to inculcate this knowledge in them and even practice them that in their daily lives. तो बाद में जब अभी ऑफलाइन हम कुछ कुछ सेशंस रखते थे, लाइक हर वीक में ट्वाइस और थ्राइस अलग अलग बैचेस में, एंड गर्ल्स यूज्ड टू कम। एंड तो ग्रेजुअली फिर हमने सेंटर्स ट्राई किया कि हम ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर हम भगवत गीता के बारे में टीच कर सकते हैं लोगों को। एंड जब कोरोना का पीरियड आया तो तब तो ऐसा था कि कुछ मूवमेंट कुछ भी नहीं हो सकती थी। तो फिर देन वी थॉट कि वी कैन ट्राई डूइंग इट ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑन दी वर्चुअल प्लेटफॉर्म। देन वी हैव स्टार्टेड गीता क्वेस्ट, and Gita Quest is now actually serving and has actually transformed 18,000 lives around, like of young people who are actually practicing Bhagavad Gita, and जो teachings हैं उनको actually apply कर रहे हैं। and आप देखोगे जो जो Gita Quest में जो teachers हैं, जो mentors हैं, you will find they all are from IIT, and they are preaching, they are teaching Bhagavad Gita, as well as they are doing jobs, or they are some of them are like third year in IIT, fourth year in IIT. So at the same time they're studying very well, and वो सारे principles को अपने life में भी apply कर रहे हैं। तो ये motivation actually हम किसी को तभी बता सकते हैं जब हमारी लाइफ में हम पर्सनली भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो अगर मैं पर्सनल लेवल पर कुछ बताऊं तो वो ये था कि आई यूज्ड टू बी वेरी एंग्शियस, कि समटाइम्स ऐसा होता था कि सिचुएशंस अगर मेरे फेवर में नहीं है, बहुत सारे लाइक हमारे स्कूल में बहुत बार ऐसा होता है, कॉलेजेस में बहुत बार ऐसा होता है, सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती, एंड आई यूज्ड टू बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी एंग्शियस। एंड तो मुझे लगता था कि कुछ वे होना चाहिए कि हाउ टू डील दीज थिंग्स, कि ये सिचुएशंस तो क्योंकि लाइफ में हमेशा आएंगी, इट्स नॉट लाइक वो अभी सॉल्व हो गई आगे नहीं आएगी। सो दैट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। हम भगवत गीता में देखेंगे तो भगवान ये भी बताते हैं वर्स में कि दुखालयम अशाश्वतम, तो ये जो वर्ल्ड है दिस इज फुल ऑफ मिजरीज। तो किसी को कुछ मेंटल मिजरी होती है, किसी के पास कोई फाइनेंशियल मिजरी होती है, किसी की कोई बॉडीली लेवल पे मिजरी होती है, मे बी एनी काइंड ऑफ एक और डिसीज। तो
और कुछ नहीं तो जब कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज फाइन, तो कहीं से नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं या कोरोना जैसे एपिडेमिक आ जाते हैं। तो मुझे बहुत एंग्जाइटी रहती थी स्मॉल छोटी छोटी चीजों पे भी, कि मैंने इतना अच्छा आंसर लिखा, स्टिल मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिले, कहाँ कटा, या फिर मैंने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की, स्टिल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ गए कि भाई मुझे वो नहीं आते थे। एंड आई वाज वेरी लाइक गुड स्टूडेंट इन स्टडीज, तो मैं इन सब चीजों को लेके बहुत मैटर रखती थी। तो तब मुझे, जब मैंने भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट करी और मुझे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए कि कैसे एक्चुअली में चीजें वर्क करती हैं, कैसे ये पूरा नेचर वर्क करता है, प्रकृति वर्क करती है, तो उसके हिसाब से फिर मैंने उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया कि किस टाइम पर कैसे टॉलरेंस डेवलप करनी है, किस टाइम पे कैसे पेशेंस डेवलप करने हैं, एंड एट द सेम टाइम कैसे अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से करना है विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है हम अपनी लाइफ में रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कि अगर हम स्टडीज भी कर रहे हैं तो हमारा पूरा एकदम मोटिव होता है कि हम स्टडीज को छोड़ देते हैं, बट हमारा माइंड होता है कि कैसे भी करके मुझे आईआईटी के इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या कैसे भी करके जो भी हमारा प्रोफेशन है, हमें वहां पर मेडिकल या फिर कॉलेज है तो वहां पे हमें एडमिशन मिल जाए। बट जो हमारी एक्चुअल ड्यूटी है, लाइक वी आर अ स्टूडेंट, हम वो भूल जाते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है राइट नाउ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फ्रूट ओरिएंटेड हो जाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। सो उस टाइम पर लाइक इट रियली हेल्प मी कि कैसे मुझे अपनी ड्यूटी अभी देखनी है बहुत अच्छे से। तो हम अगर भगवत गीता में भी देखेंगे, भगवान ने ड्यूटीज को करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो भगवान कभी रिकमेंड नहीं करते कि पर्सन कोई लेजी हो जाए, अपनी ड्यूटीज छोड़ दे, या जो उसको असाइंड है उसको बहुत अच्छे से करने के लिए भगवान हमेशा रिकमेंड करते हैं। तो हम देखेंगे कि भगवत गीता जो स्टार्ट होती है, तो चैप्टर 1 में बैटल फील्ड का पूरा सीन होता है। तो वहां पर क्या होता है कि फाइट जब स्टार्ट होने वाली होती है, अर्जुन भगवान को कहते हैं, तो वो दोनों अपने रथ पर होते हैं, अपने चैरियट्स पर होते हैं, भगवान उनके सारथी होते हैं, चैरियट ड्राइवर। तो अर्जुन उनको भगवान को कहते हैं कि आप ना ये दोनों पार्टीज, पांडव और कौरवास, मुझे ये रथ को मुझे बीच में लाके रखो, दोनों पार्टीज के बीच में, मैं देखना चाहता हूँ एक बार कि मुझे किस किस से फाइट करनी है। तो जब भगवान उनको दोनों पार्टीज के बीच में लेके जाते हैं, तो अब अर्जुन एक एक व्यक्ति को देखते हैं जिनसे उनको फाइट करनी है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो कि जो उनके अपोजिट पार्टी में होते हैं वो उनके खुद की फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो उनके ग्रैंडफादर भीष्म पितामह, एंड उनके कजन्स, उनके टीचर्स कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। तो अर्जुन क्लियरली बताते हैं, अलग अलग पहले वो एक्सक्यूज देते हैं, उनको इतना ज्यादा ही बिकम सो ओवरवेल्म्ड कि मुझे अपने टीचर से फाइट करनी पड़ेगी, दे आर सो रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज, मैं उनसे फाइट कैसे कर सकता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जिन्होंने मुझे अभी से लेकर, छोटे से लेकर अभी तक बड़ा किया है, मुझे तो उनको सर्व करना चाहिए, बट मैं कैसे सोच भी सकता हूँ कि मैं उनको अभी आगे जाके उनके साथ फाइट करूंगा एंड आई एम गोइंग टू किल हिम। तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, एंड वो कृष्णा को क्लियरली कहते हैं कि दिस इज सच अ टफ टास्क एंड मैं ये नहीं करूंगा। तो वो अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं कि इससे बेटर है, ऐसे रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज को मारने से बेटर है कि मैं खुद ही संन्यास ले लूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ, आई डोंट वांट एनीथिंग, मैं जाके फॉरेस्ट में अकेला रह लूंगा, बट मैं ये नहीं करूंगा। उन्होंने फिर बहुत कुछ बोला कि अगर इतनी बड़ी फाइट होगी, इतना युद्ध होगा, तो बैटलफील्ड में बहुत सारे लोग मर जाएंगे, तो दे विल बी नो वन हु आर गोइंग टू गिव प्रोटेक्शन टू लिटिल चिल्ड्रन, टू विमेन। तो इस तरीके से वो ट्राई करते हैं कि कैसे करके कृष्णा अग्री हो जाए और ये युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन भगवान ने उनको क्लियरली बताया कि यू आर अ क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हो एंड आपकी ड्यूटी क्या है, टू फाइट। तो अगर हम अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली देखें तो क्षत्रिय की कुछ ड्यूटीज डिफाइंड होती हैं, तो वो ड्यूटीज हमारे लिए भी अलग अलग डिपेंडिंग ऑन हम किस लेवल पर हैं, लाइक वी आर वर्किंग और वी आर हाउस वाइफ, वी आर मदर्स, वी आर विमेन, और तो ऐसी बहुत टाइप की ड्यूटीज स्क्रिप्चर्स में डिफाइंड होती है। तो ऐसी क्षत्रिय की ड्यूटी थी उस टाइम पर कि वो फाइट करें, एंड वो फाइट करना इतना इंपॉर्टेंट था कि अगर अर्जुन तब फाइट नहीं करते तो क्या होता, जो वर्ल्ड का जो ये जो किंगडम था पूरा, वो एक अधर्मी के कंट्रोल में आ जाता, दैट इज दुर्योधन। तो वो रूल करते एंड अल्टीमेटली क्या होता कि राज्य में जितने भी लोग थे, तो एक रूलर का क्या रोल होता है कि
उनकी राज्य में जितने भी लोग हैं, जितने सिटीजन्स हैं, उनको ट्रीट करना एज चिल्ड्रन, उनको प्रोटेक्शन देना, करेक्ट जजमेंट देना और उनको प्रोटेक्ट करना, अच्छे से उनको रूल करना। लेकिन जब रूलर के पास ही इतना लाइक प्रॉपर ब्रेन नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो वो जजमेंट कैसे कर सकता है? तो उस टाइम पे एसेंस थी कि अर्जुन को फाइट करना ही था, ताकि वो फाइट करे और अल्टीमेटली वो युद्ध को जीते और धर्म का एस्टैब्लिशमेंट हो। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि अर्जुन ने मना कर दिया था, बट कृष्णा वाज नेवर इन फेवर। उन्होंने क्लियरली बोला कि उत्तिष्ठः कौन्तेय। तो हम देखेंगे उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि भाई खड़े हो, आपको फाइट करना है, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो लोग सोचते हैं बहुत बारी कि अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ भी अपने लाइफ में ऐड ऑन करना चाहते हैं कुछ स्पिरिचुअलिटी, तो वो सोचते हैं कि अगर हम यही करेंगे तो हम अपनी और ड्यूटीज कैसे करेंगे, हम शायद अगर ये करेंगे तो हम अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम भगवत गीता या स्पिरिचुअलिटी करते रहेंगे। शायद हम ये करेंगे तो हम बाबा बन जाएंगे, हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम सन्यासी बन जाएंगे, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे कंसेप्शंस हैं। लेकिन हम खुद देखेंगे भगवान अर्जुन को युद्ध स्थल पर उनकी मतलब ही इज रेडी टू फाइट, तो उनको वहां पर भगवान कह रहे हैं कि भाई आपको फाइट करना है, आप फाइट छोड़ नहीं सकते। एंड हम ये भी देखेंगे कि अर्जुन वाज नॉट एन ओल्ड मैन, कि भगवान एक ओल्ड व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो अर्जुन ही वाज अ यंग मैन एंड वो बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, बहुत टैलेंटेड थे एंड ही वाज अ वेरी स्किल्ड वॉरियर। तो उनको भगवान कह रहे हैं अपनी ड्यूटीज करने के लिए। तो एट द सेम टाइम जब हम ये सोचते हैं कि अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी को अपनाने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमसे सब छूट जाएगा, हम शायद बाबा बन जाएंगे, हमें सब रिनाउंस करना पड़ेगा, हमें जंगल जाना पड़ेगा, हिमालय जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। एट द सेम टाइम इफ वी आर स्टूडेंट्स, तो अगर हम अपनी लाइफ में भगवत गीता को अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे देयर विल बी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। हम अपनी लाइफ में और ज्यादा इनफैक्ट एक बैलेंस्ड शेड्यूल, बैलेंस्ड लाइफ हम महसूस करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, तो वर्किंग क्लास हो या स्टूडेंट क्लास हो, इन बोथ वे हम देखेंगे कि हम जितना अभी तक पढ़ाई कर रहे थे या जितना भी हम अपना लाइफ जी रहे थे, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी मच इंक्रीज हो जाएगी अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी पार्ट एटलीस्ट स्पिरिचुअल लाइफ के लिए या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए देंगे। So basically I felt it, so this was my motivation कि क्योंकि I am able to manage things now. I won't say perfectly because I'm still learning, still trying to practice, but yes, it has helped me to a very good extent. तो ये बहुत अच्छा है अगर स्पेशली यूथ जिनके लिए भगवत गीता है, अगर वो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे तो दे विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेट, दैट्स वंडरफुल कि इतने यंग एज में आपने ये इसमें आपकी इंटरेस्ट जागी और आपने उसको आगे भी उसको आप बढ़ा रहे हो। दिस इज रियली कमेंडेबल। सो कैन यू शेयर विद अस few life lessons that we can draw from Gita and we can apply in our day-to-day life as professionals, as mothers, as just as human beings, So can you share something with us, or for young girls like you do? So what is it that you can give us today, like from Gita? Yes, तो हम देखेंगे कि like we are already conducting the free Gita course on Gita Quest platform, and I'm actually trying to mentor a good number of girls. And अगर हम उनसे भी बात करेंगे तो when they share their experiences, तो first experience जो उन्होंने share किया वो ये था कि they have started getting up early in the morning. तो हम देखते हैं कि चाहे बच्चे हों, इवन हम एडल्ट्स में भी देखेंगे बहुत बारी कि ये जो प्रैक्टिस है जल्दी उठने की, वो धीरे धीरे सब खत्म हो गई है। एंड हम बहुत बार ट्राई भी करते हैं। हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ सोच के सोते हैं रात में कि हमें मॉर्निंग में 5 o'clock उठना है क्योंकि हमें ये काम कंप्लीट करना है, बट स्टिल इवन अगर हम 5 से 10 अलार्म्स भी लगाते हैं तो हम उठ नहीं पाते। एक एक करके पहले 5 o'clock का अलार्म बंद होता है, फिर 5:10 का अलार्म बंद होता है, फिर 5:30 का अलार्म बंद होता है, एंड देन माइंड में आता है कि अब छोड़ो, अब कल से उठेंगे।
तो हम देखेंगे कि इस टाइप की जो लोग गीता को समझते हैं और उसकी टीचिंग्स अपनी लाइफ में उतारते हैं, सबसे पहली चीज जो एक्सपीरियंस करेंगे कि वो जल्दी उठ पाएंगे। देन सेकंड थिंग, जैसे मैंने बताया, वेरी बैलेंस लाइफ। तो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 14th, 17th एंड 18th ये एक डील करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से, जिसको हम कहते हैं प्रकृति के गुण, दैट इज मोड्स ऑफ नेचर। So I just wanted to make it little interactive, but I'm not sure if I can do that. So can I do that? Can I ask Sangam or Ranjita? Yeah, very much. Yeah. So किसी ने कभी प्रकृति के गुण के बारे में कुछ सुना है? जैसे एक सत्व गुण टाइप का वर्ड होता है, सत्व गुण, तमो गुण, राजसिक, और कुछ नहीं तो सत्व आहार के बारे में सुना होगा। Yes, ma'am. Yes. Yes. So can you share something कि आपने इनके बारे में? मुझे जो पता है, सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार। तो सात्विक होता है बहुत ही जो नेचुरल हमें मिलता है, प्रकृति से जो हमें मिलता है, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, और जो भी हम एक बहुत ही किसी को हानि पहुंचाए बिना जो हमें मिलता है, जिसमें ज्यादा केमिकल ना हो और इस तरीके का, वो है सात्विक। तामसिक है जो जैसे बहुत ही ज्यादा स्टेल हो गया, बासी हो गया, बहुत ही ज्यादा ओवर राइप हो गया, या जो फूड कलर्स हैं, कुछ ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो जब वो फूड में आता है तो वो फूड को तामसिक कर देता है, जिससे हमारा जो नेचर भी हो जाता है वो तामसिक हो जाता है। जैसे कि तामसिक कहने का मतलब है लेजी हो जाता है और थोड़ा डिप्रेस्ड काइंड ऑफ हो जाता है। और तामसिक और राजसिक होता है जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी, हॉट और उस तरीके का जो खाना आप खाते हो, और जिससे आपके अंदर उत्तेजना आ जाती है, गुस्सा आता है इन सब ऐसे चीजों को खाना खाने से। जैसे नॉन वेज भी एक राजसिक खाना है। तो ये है मेरी नॉलेज इसको लेके। सात्विक खाना खाने से आपका तन मन सब मुझे लगता है कि स्वस्थ रहता है, तो आपके विचार पॉजिटिव रहते हैं सात्विक खाना खाने से। और तामसिक और राजसिक खाने से विचारों में भी परिवर्तन आता है, विचार बदल जाते हैं और आपका व्यवहार बदल जाता है। तो ये है मेरी नॉलेज। अब आप बताइए। वेरी नाइस साधना जी, आई मीन यू हैव कवर्ड लाइक टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। तो अभी जैसे आपने बताया, हमने देखा कि ये जो तामसिक, राजसिक और सात्विक है, आपने आहार, बेसिकली फूड के बारे में बताया कि और उससे कैसा कैसा बिहेवियर बनता है। तो हम देखेंगे कि भगवत गीता में भी भगवान ये जो 3 फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो बहुत बारी हम देखते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं जो कि हम छोड़ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल लाइक ड्रिंकिंग हो गया या स्मोकिंग हो गया, और ऐसे हम स्पेशली यूथ में देखेंगे बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे कुछ एल्डर्स हैं या हमारे कुछ सीनियर्स हैं, हमें सिखाया जाता है कि हमें बहुत रिस्पेक्ट से उन्हें बात करनी है, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम उन्हें क्या करते हैं, उनके साथ किसी न किसी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या हम उन पर एंगर शो कर देते हैं। लेटर वी रियलाइज एंड कि हमें ऐसा नहीं करना था, एंड वी बिकम वेरी वेरी गिल्टी। तो हम देखते हैं कि ये सब जो चीजें हैं, ये किसी न किसी, ये जो एक्चुअली दे आर लाइक अ फोर्सेस जो प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये जो 3 टाइप के फोर्सेस हैं, इन्हीं को कहते हैं मोड्स ऑफ नेचर। और हम जितने भी लिविंग एंटिटीज, जितने भी हम जीव देखेंगे, वो कहीं ना कहीं इन सभी फोर्सेस के अंडर रहते हैं। तो इन फोर्सेस की वजह से ही अलग अलग टाइप की अर्ज आती है, विच बेसिकली मेक्स अ पर्सन टू टेक अ स्टेप और टू डू समथिंग, या एक अर्ज क्रिएट करता है कि वो एक पर्टिकुलर हैबिट को छोड़ नहीं पाता। अगर वो बहुत ट्राई करे कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, बट वो स्टिल जल्दी नहीं उठ पाता। क्यों? क्योंकि देयर इज सम फोर्स, देयर इज सम अर्ज विच इज बेसिकली हैपनिंग और विच इज क्रिएटिंग समथिंग इनसाइड हिम, जो उसको वो काम करने नहीं देती।
तो हम देखेंगे जैसे आपने आहार का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, ऐसे ही जो तमोगुण और सतोगुण और ये रजोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं जिसको हम मोड्स ऑफ गुडनेस जिसे सात्विक गुण भी कहते हैं, मोड ऑफ पैशन जिसे राजसिक गुण भी कहते हैं, और मोड ऑफ इग्नोरेंस जिसे तमोगुण भी कहते हैं। तो हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम एनालाइज करेंगे कि इसका इफेक्ट हर जगह किसी ना किसी सिचुएशन पे रहता है। तो आफ्टर वील डिस्कस इट, हम इजीली रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ को कि कैसे ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और कैसे हम इन फोर्सेस से बंधे हुए हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि सतोगुण जो फोर्स जिस व्यक्ति पर एक्ट करता है, जो पर्सन सत्व गुण के अंडर है, हम देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज्यादा पीसफुल होते हैं and they are very calm personalities and they are very clarity of thoughts. अगर हम उन्हें कोई सिचुएशन में रखेंगे they are very easily they are able to take decisions कि मुझे यही करना है, very clear in their understanding, very clear in their thoughts. and हम देखेंगे कि एक सात्विक जीवन, जैसा हमने वर्ड सुना है, तो सात्विक जीवन मीन्स एक सूदिंग म्यूजिक या एक ऐसा प्लेस जैसे हम माइंड में सोच सकते हैं कि वी आर सिटिंग इन ऋषिकेश नियर द रिवर गैंजेस एंड वहाँ पर हम मेडिटेट कर रहे हैं। तो वो ऐसे इन्वायरमेंट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, नेचर की ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड मॉर्निंग में जब इन्वायरमेंट बहुत काम होता है तो वो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी उठते हैं। तो ये वैसे लोग होते हैं जो सत्व गुण के अंडर यूजुअली रहते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं and very positive in our life, very positive aura they have and सात्विक लाइफस्टाइल जैसा आपने बोला, किस उनका आहार भी एक अलग टाइप का होता है, वेरी फ्रेश फूड वो इनटेक करते हैं एंड वेरी बैलेंस्ड लाइफ। ऐसा नहीं कि इफ आई यूज लाइक दैट टर्म हबड़ धपड़, ऐसा उनकी लाइफ में नहीं होता, नो हॉच पॉच, नो मैसी लाइफ, वेरी स्ट्रक्चर्ड। तो ये लोग होते हैं जो सत्व गुण के अंदर होते हैं। देन एट द सेम टाइम हम कुछ ऐसे भी लोग मे बी हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में या ऐसे अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हम ऐसे भी देखेंगे जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड होती है एंड उनके अंदर इतनी सारी डिजायर्स होती हैं कि हमें इस पॉइंट पे ये करना है, फिर हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। उनकी लाइफ में ना कोई क्लियर गोल्स नहीं होते, बट उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें एक ही पॉइंट पे बहुत सारी चीजें अचीव करनी होती है, उनकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं। तो अभी उन्हें क्रिकेट में एक मास्टर बनना है, एट द सेम टाइम वो डांस एरिया में जाएंगे, उनको वहां पर मास्टर बनना है, एट द सेम टाइम उन्हें स्टडीज में बहुत आगे रहना है। देन हम देखेंगे कि उनकी क्लैरिटी थॉट्स, अगर हम देखेंगे थॉट्स में बहुत ज्यादा दे आर कंफ्यूज्ड। हम देखेंगे कि वो डिसीजंस बहुत इजीली नहीं ले पाते। इवन इफ अगर हम स्कूल में भी देखें तो अगर उनको 8th 9th में हमें चॉइस मिलती है कि संस्कृत लेनी है कि हिंदी, तो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। तो वो अपने रिलेटिव से पूछेंगे मुझे क्या लेना चाहिए, वो अपने नेबर से कंसल्ट करेंगे, फिर पता चलेगा कि ठीक है चलो संस्कृत ले लेते हैं, स्कोरिंग। फिर जब 11th स्टैंडर्ड आएगा फिर कंफ्यूजन होगी कि स्ट्रीम मुझे कौन सी लेनी है, मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। तो बहुत मुश्किल से वो आर्ट्स को रिमूव करके पहुंच पाते हैं, मैं कॉमर्स और साइंस ले लेता हूँ चलो। फिर वो अपने नेबर से कंसल्ट करते हैं मुझे फ्यूचर में क्या लेना चाहिए। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर लाई करना है। इवन इफ दे ऑप्ट फॉर साइंस स्ट्रीम, तब वो सोचते हैं कि मुझे मेडिकल लेनी चाहिए कि नॉन मेडिकल लेना चाहिए। तो दे आर नॉट क्लियर विद देयर प्रायोरिटीज। तो ये लोग सब कहाँ पर होते हैं, ये राजसिक गुण के अंडर होते हैं, जिनकी थॉट्स इतनी क्लियर नहीं होती। एंड क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, वी कैन सी देम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ एंड समटाइम्स वेरी एंशियस इन देयर लाइफ, वेरी एजिटेटेड ओवर थिंग्स। एंड हम देखेंगे क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत अनबैलेंस्ड होता है, वो सारे काम बहुत एंड मोमेंट पे करते हैं। इवन अगर हम कोई एग्जाम प्रिपरेशन देखें तो पहले वो आराम से टाइम स्पेंड करते हैं, अरे कर लेंगे। एंड जब एग्जाम होता है उसके बस 2 दिन पहले बुक खुलती है एंड चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट होते हैं और रात को सोते नहीं हैं कि कैसे भी करके कोर्स कंप्लीट करें, और लास्ट मोमेंट तक भी 1-2 चैप्टर रह जाते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं जो मैनेजमेंट नहीं कर पाते अपने लाइफ का, हम देखते हैं कि वो राजसिक गुण में होते हैं। देन थर्ड हम देखेंगे, हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे अपनी स्कूल से लेके ऑफिस लाइफ तक, इवन आगे हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग दिखेंगे जो तमोगुण के इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा
नेचर में वायलेंट होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी एक्टिविटीज भी ऐसी होती है, डिस्ट्रक्टिव नेचर की उनकी एक्टिविटीज होती हैं। तो उनका बेसिकली लाइफ भी होती है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, वो कैसी होती है कि जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उसके हमेशा अपोजिट काम करना है। तो दे आर ऑल्सो वेरी क्लियर इन द थॉट्स। उनको ये पता है कि अगर ये चीज रिकमेंडेड है तो मैं वो नहीं करूंगा, वेरी वेरी क्लियर इन देयर थॉट्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि शास्त्र के अकॉर्डिंगली एंड मॉरली अगर हम देखें कि अगर हम देखें ड्रिंकिंग, तो दैट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग। तो अगर हम इसको अपने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें या हम उसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें, सो अल्कोहल एंड ऑल दिस इज यूजुअली कंडेम्ड। तो अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो उसका ये बहुत क्लियर होगा ये चीज कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ को ये अफेक्ट कर रही है और मेरी इससे एज भी कम हो जाएगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मुझे ड्रिंकिंग नहीं करनी। कोई भी पॉइंट ऑफ लाइफ में ही विल बी ही विल स्टे अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग। एट द सेम टाइम जो व्यक्ति राजसिक गुण के अंडर होगा वो क्या सोचेगा कि उसको ये चीज पता होगी कि ये चीज ड्रिंकिंग इज नॉट अ नाइस थिंग, मुझे थियोरेटिकली पता है कि मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब उसका कोई फ्रेंड आएगा उसके पास और वो कहेगा कि तू ये क्या कहाँ पे घुस गया, ये भी ड्रिंकिंग करने की हमारी एज है, कर भाई पार्टी में आ, एंजॉय कर, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ये समझ नहीं आएगा कि ड्रिंकिंग इज नॉट अ नाइस थिंग, तो मुझे ये नहीं करना। बट एट द सेम टाइम क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरा फ्रेंड कह रहा है तो थोड़ी सी तो मैं कर ही सकता हूँ, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे भाई वो चीज फॉलो करनी चाहिए कि नहीं, या मैं अपने फ्रेंड की बात मानूं, फ्रेंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। तो ये राजसिक व्यक्ति का एक इस टाइम पर एग्जीक्यूट करेगा, वो क्या कैसे एक्शन लेगा। देन एट द सेम टाइम जो इग्नोरेंट जो मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर है वो बहुत क्लियर होगा कि ड्रिंकिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मेरे पेरेंट्स रिकमेंड नहीं करते, सोसाइटी रिकमेंड नहीं करती, मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं ड्रिंकिंग करूंगा। तो इसकी लाइफ में ये चीज बहुत क्लियर होगी कि जो चीज मुझे नहीं करनी मैं वो चीज करूंगा। तो इनफैक्ट जो व्यक्ति मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है, तमोगुण में होता है, हम देखेंगे उनके लॉजिक्स भी ऐसे होते हैं जो एकदम हम देखेंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड लॉजिक्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा व्यक्ति जो तमोगुण है, तमोगुण में उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे एंड डॉक्टर उनको समझाएंगे कि उनको एग्जाम्पल से समझाएंगे, मे बी द डॉक्टर विल टेक एक ग्लास ऑफ एल्कोहल एंड वो एक बग को इसमें डालेंगे एंड वो बग मर जाएगा। तो डॉक्टर उनको समझाएंगे कि देखो कि इसका क्या हर्ष हुआ, तो आप क्या समझे इस चीज से, व्हाट टू डू विद द अल्कोहल। तो मे बी वो जो व्यक्ति है वो जो तमोगुण में है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी कि ये तो सही है ना, अल्कोहल ने बग को मार दिया, तो मतलब अगर मैं ऑल अल्कोहल कंज्यूम करूंगा तो मेरे अंदर के सारे जर्म्स मर जाएंगे। तो उनकी ऐसी मेंटालिटी होती है, ऐसी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। इवन इफ डॉक्टर उनको और समझाएगा कि अरे भाई इफ यू विल ड्रिंक यू विल कंज्यूम मोर अल्कोहल, तो तुम्हारी लाइफ रिड्यूस हो जाएगी, तुम्हारी एज खत्म हो रही है इस चीज से, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, तो ये तो बहुत अच्छा है ना, अल्टीमेटली सबको ही मरना है, मैं पीकर मर जाता हूँ। तो उनके जो थॉट्स होते हैं ना इतना अपोजिट होते हैं कि वह हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अपने आर्ग्यूमेंट से, लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं। मतलब वो अपने आंखों को जानबूझकर बंद करके रखते हैं कि एग्जैक्टली अगर पता भी होगा तो दे डोंट केयर कि एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ डिसिप्लिन नाम की चीज है, नथिंग। एंड उनका हम एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, वो हम देखेंगे लेजीनेस एंड काम को डिले करना। तो अगर हम अपने एंट्रेंस के टाइम में भी देखें या हम अपने स्कूल के टाइम में देखें या अपने जनरल लाइफ में भी देखें, देयर आर मेनी टास्क जो हमें असाइन किए जाते हैं। तो अगर हम असाइनमेंट्स की बात करें या मैं पर्सनली अपने ऑफिस लाइफ की बात करूं तो हमें कुछ डेडलाइंस होती है और हमें प्रोजेक्ट्स सबमिट करने होते हैं। तो हमें बताया जाता है कि आफ्टर 2 वीक्स आपको ये असाइनमेंट या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। तो मैं पर्सनली अपने ऑफिस में भी ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनको अगर 2 वीक्स पहले ही बताया जाता है कि वो कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं करते एंड वो पूरा ट्राई करते हैं, पहले तो 1 या 1.5 हफ्ते वो पूरा आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं कि भाई सैलरी मिल रही है, फ्री में मिल रही है, अभी हटाओ इस टाइम को। देन बाद में वो पूरा ट्राई करते हैं कि कैसे मैं इस डेडलाइन को आगे जाके बढ़ा सकूं।
तो डेली हमारी कुछ मीटिंग्स होती हैं, हमें अपडेट देना होता है कि हमने डेली क्या किया। तो दे आर ऑलवेज रेडी विद एनी एक्सक्यूज कि भाई अब तो ऑनलाइन भी हो गया सब कुछ, तो और बेटर तरीके से वो एक्सक्यूज दे पाते हैं कि भाई हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था आज तो मैं काम नहीं कर पाया, अरे मैं कोलकाता में हूँ, यहाँ पे साइक्लोन आया हुआ है तो मैं काम नहीं कर सका, अरे मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, देन अगले दिन वो लीव ले लेगा। तो ऐसे कर करके पूरा हफ्ता तो ऐसे ही चला जाता है। एंड जब डेडलाइन आती है तभी वो पूरा ट्राई करता है कि मैं किसी और के थ्रू काम करवा लूँ। तो ये हम स्कूल में भी देखेंगे। तो स्कूल में क्या होता है, हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं टीचर्स से, तो बच्चे ऐसे हमें स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो ट्राई करते हैं कि हम कैसे किसी और से असाइनमेंट करवा लें आखिरी मोमेंट तक, या कैसे हमारा असाइनमेंट जो है हम उसको डिले कर सकें। और कुछ नहीं तो वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो मैम के पास पर्सनली जाते हैं, टीचर्स के पास, और पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि इस असाइनमेंट के नंबर कितने हैं। अगर 5 या 10 नंबर हैं तो फिर तो वो असाइनमेंट करते ही नहीं है कि अरे 5 या 10 नंबर का क्या है, हम कहीं और कवर कर लेंगे, अपने इंटरनल में कवर कर लेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो तमोगुण में लाई करते हैं। सो दे आर सो लेजी इन देयर लाइफ। तो हम देखेंगे उनकी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, और उनके एक्शंस किस टाइप के होते हैं, वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो या तो वो डिस्ट्रॉय करते हैं, हम देखेंगे एक्टिवली। तो हम अगर जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज देखें तो ये एक्टिविटीज हैं जिसमें बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, लॉस ऑफ लाइफ या देयर इज टू मच वायलेंस। तो ये डिस्ट्रक्टिव नेचर की एक्टिविटीज हैं। तो जो व्यक्ति तमोगुण में होता है वो ऐसी एक्टिविटीज करता है। सो दिस इज एक्टिव। सो देयर इज पैसिव डिस्ट्रक्शन एज वेल, जो कि हमारे लिए बहुत पर्सनली बहुत हार्मफुल होता है। तो जैसे हमने देखा अलग अलग टाइप की हैबिट्स, मेनी टाइम्स जो यूथ होता है दे गेट इन्वॉल्व इन द ड्रग्स, तो उनको ड्रग एडिक्शन हो जाता है, वो स्मोक नहीं छोड़ सकते, बहुत बार समझाने के बाद भी दे लाइक स्मोक चेन के व्हाट कॉल दैट चेन स्मोकर्स, राइट। तो वो अपनी हैबिट्स को छोड़ नहीं पाते। सो ये जो एक्टिविटीज हम देखेंगे कि इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, जो वो खुद को भी डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर जो दूसरों को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो तमोगुण में हम देखेंगे कि देयर इज नो प्रोडक्टिविटी इन लाइफ। अगर हम लेजी रहेंगे, हम बहुत बारी बहुत छोटी छोटी, अगर मैं इंस्टांसेस भी लाइफ में बताऊं कि समटाइम्स इट हैपेंस कि हमारी मदर्स हमें कहती हैं कि उठ के फटाफट से वो पानी का ग्लास ला दो, एंड हमारा रिएक्शन होता है अरे अभी कर देंगे, अरे अभी मन नहीं कर रहा, चलो 10 मिनट में लाता हूँ। तो अगर हम इसको भी एनालाइज करें, इसको भी ऑब्जर्व करें, तो हम देखेंगे कि ये चीज भी तमोगुण के अंडर है। तो मतलब करंटली तमोगुण हम पर काम कर रहा है। तो इस चीज को अगर हम तमोगुण को और इलाबोरेटली देखें तो तमोगुण ऐसे ही खाने में भी हम देख सकते हैं कि फूड में भी रहता है कि जब हम कुछ तामसिक प्रकार का फूड लेते हैं तो बेसिकली फूड से क्या होता है, वो तामसिक टेंडेंसीज को बहुत इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस प्रकार का फूड खाएंगे, एक सर्टेन टाइप ऑफ फूड होता है जो हमारे अंदर ऐसी टेंडेंसी करता है कि हम और तामसिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम छोड़ने का भी प्रयास करते हैं ना तो हम छोड़ नहीं पाते। वो हमारी मेंटालिटी को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को वैसे ही बनाता है कि जो चीज रिकमेंडेड है हम उसको अपोजिट सोचेंगे। तो अगर मेरी केमिस्ट्री की क्लास है मुझे या मेरी फिजिक्स की क्लास है एंड आई नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई हैव टू अटेंड इट, तो अगर मैं तमोगुण के अंडर हूं, अगर वो मेरे पर एक्ट कर रहा है तो मेरा क्या वो रहेगा, उस पर अंडरस्टैंडिंग अपोजिट रहेगी कि अगर केमिस्ट्री की क्लास है तो मैं इसको अटेंड नहीं करूंगा, ये फालतू क्लास है। मैं आगे फ्यूचर को देयर वोंट बी एनी अर्ज जो मुझे हेल्प करेगी कि मैं कुछ एक्टिविटी करूं और अपनी फ्यूचर के बारे में सोच सकूं। तो ये बिहेवियर अगर हम राजसिक में देखें तो इट इज बेटर, लेकिन हम उसमें भी देखेंगे कि राजसिक में क्या होता है, देयर आर 2 थिंग्स जो एग्जिस्ट करती हैं। वन इज डे ड्रीमिंग। तो यूजुअली हम देखेंगे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूथ एंड उनका स्टडी का टाइम होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो सोच के बैठते हैं कि मैं अपने कोर्स में मैं जो भी एंट्रेंस दे रहा हूँ मैं उसमें इतना एटलीस्ट कंप्लीट करूंगा कि मैं 2-3 चैप्टर्स इस टाइम पे कंप्लीट कर लूंगा। तो वो बेड पर बैठते हैं अपनी बुक लेके एंड वो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। फिर उनके माइंड में ग्रेजुअली स्टार्ट होता है कि ठीक है, अगर मैं ये चैप्टर 3 कंप्लीट कर लूंगा एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मेरा जो क्लासमेट जो टॉपर है वो उसको तो ये चैप्टर क्लियर है नहीं, तो मैं शायद उससे आगे बढ़ जाऊंगा। तो अगर मैं उससे आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे एग्जाम में शायद
मेरा ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, मैं ज्यादा स्कोर कर पाऊंगा एंड शायद फिर मैं एंट्रेंस भी मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और फिर मेरी बहुत अच्छी जॉब लगेगी एंड मे बी मैं फेसबुक या गूगल में जॉब लग जाए। तो डे ड्रीमिंग इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्टडिंग व्हाट इज हैपनिंग, वो अपना फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। तो सेम थिंग हम देखें जो आजकल होता है इंस्टाग्राम की बात करें तो बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि आई एम इनटू म्यूजिक, आई एम इनटू डांस, या तो वो सोचते हैं कि कैसे मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो दे थिंक कि मैं इतना बढ़िया डांस करके डालूंगा, इतना सही कंसेप्ट डालूंगा, इतनी बढ़िया रील डालूंगा कि मेरे फॉलोअर्स इससे मतलब 1000 से 10,000 तो हो ही जाएंगे, ये वायरल हो जाएगी, लेकिन मैं काम कुछ नहीं करूंगा। तो बेसिकली राजसिक मोड में जब होते हैं तो क्या होता है, टेंडेंसी कैसी हो जाती है कि हम ड्रीम ज्यादा करते हैं एंड एक्चुअल प्रेजेंट स्टेट में कम रहते हैं। तो एक्चुअल हमारी पोटेंसी चाहे ज्यादा हो डिलीवर करने की, लेकिन वो पोटेंसी क्या होती है, वो खराब हो जाती है, हम उतना डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये मेन एक चीज होती है जो राजसिक में होती है। दूसरी चीज होती है वेरी अनबैलेंस्ड लाइफ। तो अगर हम ऑफिस जाते हैं या हम कुछ भी कोई प्रोफेशन में है, हम देखते हैं स्पेशली लाइक आई एम इन आईटी फील्ड, तो मैं वहां से बहुत अच्छे से लिंक कर सकती हूँ इस चीज को, और मैं स्टूडेंट फील्ड से भी लिंक कर सकती हूँ क्योंकि आई हैव बीन अ स्टूडेंट। तो व्हेन इट कम्स टू माय जॉब, तो आई हैव प्रैक्टिकली सीन मेनी पीपल जो मॉर्निंग में 4 o'clock उठते हैं क्योंकि उन्हें 6 बजे घर से निकलना होता है, और भागते हुए निकलते हैं, भागते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं, और 4-4 घंटे की ट्रैवलिंग होती है। ऑफिस में समझ नहीं आता, इतने सारे काम वो अपने सर पर ले लेते हैं, कुछ मैनेज नहीं कर पाते, कोई शेड्यूल नहीं है, डेडलाइन आ गई, इतना काम है, सबमिट करना है, देन भागते हुए घर आते हैं, डिनर का कोई टाइम नहीं है, रात को 12 बजे सो रहे हैं, 4 बजे उठ जा रहे हैं। और ऐसे मैंने स्टूडेंट्स भी देखे हैं। तो लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि इतने सारे असाइनमेंट्स, इतना सारा कोर्स पेंडिंग होता है कि उन्हें समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, ये भी पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ही नहीं है कोई। तो हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति यूजुअली राजसिक मोड में होते हैं, राजसिक गुण उन पर हावी होता है। तो वो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। वो सोचते हैं कि हम ये कभी भी कर लेंगे काम को, तो कभी भी करने के चक्कर में जो उनके लाइफस्टाइल है वो तो खराब होता ही है कि उनका कुछ खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनका जो अल्टीमेट पर्पस होता है, जिस वजह से वो जॉब करते हैं या वह जिस वजह से पढ़ाई करते हैं, वो भी वो सर्व नहीं कर पाते। तो आइडियली वी ऑल वर्क टू गेट हैप्पीनेस, हम ताकि फैमिली को टाइम दे सकें, और हम स्टडी करते हैं ताकि अल्टीमेटली हम मनी अर्न कर सकें, हम इसको अपनी हैप्पीनेस, अपनी लाइफस्टाइल के लिए स्पेंड कर सकें, हम घूमने जा सकें, राइट। लेकिन इतना हम हेक्टिक शेड्यूल बना लेते हैं, इतना ज्यादा वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम यही नहीं सोच पाते कि ना तो भाई हमें ठीक से खाने को नहीं मिल रहा जिसके लिए हम अर्न कर रहे हैं, ना हम अपनी फैमिली के लिए टाइम दे रहे हैं। इनफैक्ट हम इतना इन्वॉल्व होते हैं कि ऑफिस में हमें हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे कॉल कर रहे होते हैं, हम उनकी कॉल भी पिक नहीं करते पूरे दिन। तो अल्टीमेटली हम इतना ज्यादा अपने आप को अनबैलेंस्ड कर लेते हैं लाइफ में कि जिस पर्पज से हम ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं वही अल्टीमेटली हम सर्व नहीं कर पाते। तो ये नेचर जो होता है ये राजसिक में आता है। सात्विक में अगर हम देखें, लाइफ इज वेरी वेरी बैलेंस्ड। तो हमें पता है, तो हम देखेंगे कि जो व्यक्ति सात्विक मोड में है ना, वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी डिलीवर कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो जो भी चीजें फॉलो करता है वो एक टाइम मैनेजमेंट फॉलो करता है कि मुझे अगर मेरे पास 2 वीक्स का टाइम है तो मैं स्टार्टिंग के 2 days इस काम के लिए दूंगा, नेक्स्ट 2 days में इस काम के लिए दूंगा, बाय द एंड ऑफ दिस वीक दिस मच शुड बी कंप्लीटेड। एंड जब टाइम आता है डेडलाइन का तो उससे पहले ही या उस टाइम पर वो एकदम बैलेंस के साथ, बिना किसी हौच पौच के साथ वो अपनी चीजें डिलीवर कर पाता है। तो यही चीज हम स्टूडेंट लाइफ में देखें, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हम ऐसे देखते हैं जो बहुत क्लियरली, मतलब उनका एकदम क्लियर होता है कि मुझे इतने टाइम तक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, इतने टाइम तक मुझे अपना कोर्स कर लेना है ताकि मैं इस टाइम के बाद रिवाइज कर सकूं, इस टाइम के बाद मैं सेकंड रिवीजन कर सकूं। तो हम देखेंगे कि ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, ऑफिस में भी, स्टूडेंट लाइफ में भी, और हम घर में भी देखें, घर में भी कितने सारे, देयर आर सो मेनी हाउस होल्ड कोर्स जिसको प्रॉपरली मैनेज हम देखते हैं विमेन करती हैं।
तो दिस ऑल बेसिकली कम्स अंडर दी सत्व गुण. तो how these gunas actually impact our understanding, our activities, हम देखेंगे कि भगवत गीता कितना क्लियरली इसके बारे में बात करती है. तो हम देखेंगे कि अगर हम जब भगवत गीता के बारे में यूजुअली सुनेंगे भी ना, तो हम 2-3 चीजें कॉमनली सुनेंगे. यदा यदा ही धर्मस्य कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म योग, इसके बारे में. बट हम देखेंगे जो एक्चुअली गीता को पढ़ते हैं, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो हम देखेंगे, उन्हें ये बात समझ में आती है कि लाइफ को कैसे जीना है. तो जैसे भी हमने गुण के बारे में समझा, तो जब हम ये समझ पाएंगे कि हमें एक्चुअली सात्विक गुण में रहना है, तभी हम लाइफ में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस रख पाएंगे, पीसफुल रह पाएंगे, काम रह पाएंगे, स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे, एंजाइटी लेस रह पाएंगे. तो दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली अप्लाइंग भगवत गीता इन आवर लाइफ. सो दिस इज द वन एस्पेक्ट. तो चैप्टर 14, 17 और 18 अगर हम देखेंगे, तो ये 3 गुण कैसे हमारी एक्टिविटीज में ही नहीं, हमारे टाइम में या इवन किस टाइप की ऑस्टेरिटीज करनी चाहिए, किस टाइप के लोग डोनेशंस करते हैं, राइट, अलग अलग जगह पर. तो ये सब चीजें, ये कैसे ये गुण वहां पर भी अप्लाई होते हैं, ये सब बहुत डिटेल में बताया गया है. इनफैक्ट जैसे अभी साधना जी ने बताया कि राजसिक फूड, टू मच स्पाइसी या टू हॉट, तो ये सब भी भगवत गीता में मेंशन्ड है वर्सेस में. तो हम देखेंगे कि हर चीज अगर हम अपनी लाइफ को मोल्ड करने की कोशिश करें, या अपनी लाइफ को देखें कि हम अलग अलग सिचुएशंस, चाहे हम बहुत ही खराब स्थिति में हैं या बहुत स्ट्रेस में हैं, हम कोई भी भगवत गीता का वर्स या रिमेम्बर करेंगे तो हम बहुत इजीली अपनी लाइफ को टैकल कर पाएंगे. सो दिस इज वन सच एस्पेक्ट, दैट इज द मोड्स ऑफ नेचर. तो हम देख सकते हैं कि सात्विक गुण में हम कैसे रह सकते हैं. तो भगवत गीता बताते हैं उसके बारे में कि सत्वगुण को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को एक्सपोज करना है ऐसे सत्वगुण इन्वायरमेंट में. तो जैसे देखते हैं कि मॉर्निंग का टाइम सत्वगुण का टाइम होता है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसमें मॉर्निंग में जल्दी उठें. हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में एक शेड्यूल एक बनाकर रखें कि हम उसको फॉलो करें. तो एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग, एक्सपोजिंग आवरसेल्फ टू दी दिस इन्वायरमेंट, सात्विक इन्वायरमेंट. तो अगर हमें कोई कह रहा है कि जैसे तमोगुण में एक ये चीज भी लाई करती है कि बहुत ज्यादा तेज म्यूजिक, लाउड म्यूजिक. तो दिस इज अ मिक्स ऑफ राजसिक एंड तामसिक. तो पार्टीज होती हैं, एंड पार्टीज में हम देखते हैं किस किस टाइप की एक्टिविटीज नहीं होती. तो कोई व्यक्ति जो सत्वगुण में है वो ट्राई करेगा कि मैं ऐसी पार्टीज जिसमें बहुत ग्रॉसली ऐसी एक्टिविटीज हो रही है मैं उसको अवॉइड करूं. तो ये एक तरीका है जिसमें हम अपने आप को सत्वगुण में रख सकते हैं. सेकेंड वे इज द मेडिटेशन. तो मेडिटेशन बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी भी आई थिंक अपनी लाइफ में करते होंगे. तो मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, तो अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी लाइफ जो है बहुत हम ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे. एंड थर्ड थिंग इज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड. एंड हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड तब हो पाएंगे जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, जिसमें हमें स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी बहुत सारी मिलती हैं. सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी 5-6 एंड आई हैव टॉक्ड मच अबाउट भगवत गीता. So the ultimately, like what, just for the conclusion, I would conclude here that first thing is जो हम भगवत गीता में जो अगर हम मेजर इंस्ट्रक्शन देखेंगे जो हर पार्ट में बताया गया है वो है मेडिटेशन. तो मेडिटेशन अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो हम स्टूडेंट हैं, हम वर्किंग हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इन वट एवर स्टेट ऑफ लाइफ वी आर, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ टाइम स्पिरिचुअल एक्टिविटी को देंगे, जिसमें से मेन एक्टिविटी है मेडिटेशन को, तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में कैसे कैसे धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर रहे हैं. एंड नेचुरली हम देखेंगे ऑल द गुड क्वालिटीज जो हम सब ढूंढते हैं अपने में और दूसरों में. गुड क्वालिटीज एज इन टॉलरेंस, पेशेंस, ट्रूथफुलनेस. तो हम देखेंगे कि कैसे ग्रेजुअली वो डेवलप हो रही है. तो हम उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना टाइम दें. 24 आवर्स जो हम अपना पूरा क्रिया में जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज हैं उसमें स्पेंड करते हैं, हम एटलीस्ट 10 मिनट्स तो वही स्टार्ट करें कि हम मेडिटेट करें. तो यूजुअली पूछा जाता है कि मेडिटेशन हमें कैसे करना चाहिए. तो जस्ट लाइक इन अ वेरी शॉर्ट वे आई कैन से कि हम
एक पर्टिकुलर मंत्र को फॉलो कर सकते हैं, जो कि हम शास्त्रों, बेसिकली जो शास्त्रों से ऑथराइज्ड मंत्र है, नॉट एनी वर्ड, एनी मंत्र जो हम माइंड से बनाएं, क्योंकि उसका फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम उस मंत्र पर मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेट कैसे कर सकते हैं? उसको बोलकर और उसको सुनकर। बहुत सारे मंत्र जैसे मैं बता सकती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या साउथ इंडिया में एक बहुत फेमस मंत्र है राम राम रामेति, और एक मोस्ट फेमस मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दिस इज वेरी वेरी फेमस, एंड ये हम देखेंगे कि शास्त्रों में भी इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। हम इस पर मेडिटेट कर सकते हैं, इसको बोलकर और सुनकर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिव मेडिटेशन। तो बहुत सारे लोग साइलेंट मेडिटेशन भी करते हैं, जिसमें वो प्रॉपर बैठकर अपने चक्र पर कंसंट्रेट करते हैं, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि उसमें नींद आ जाती है या माइंड बहुत ज्यादा वैंडर करता है। तो यूजुअली इट इज, ये होता है कि मेडिटेशन करते करते नींद आ जाती है। यस, सो ये एक्चुअली होता है जब हम ट्राई करते हैं, हम स्ट्रेट पोजीशन पे बैठकर आईज क्लोज कर कर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने चक्रा पे और साइलेंटली हम मेडिटेट कर रहे हैं, तो आफ्टर हाफ एन आवर देखेंगे कि हम ऐसे की जगह ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हमें नींद आने लगती है। तो मंत्र मेडिटेशन इज वेरी वेरी इफेक्टिव, जो हमें करना चाहिए। और ताकि, क्योंकि जब हम वर्ड्स को बोलते हैं एंड एट द सेम टाइम सुनते हैं, तो हम बहुत इजीली कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो और भी वी कैन डिस्कस अबाउट द भगवद गीता एंड हाउ वी कैन अप्लाई। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल साधना जी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि एटलीस्ट मैं कुछ भगवद गीता के एस्पेक्ट को डिलीवर कर पाई। एंड इफ एनीवन वांट्स टू लर्न मोर इन भगवद गीता, तो आप गीता क्वेस्ट के फ्री भगवद गीता कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आपके मेंटर्स भी सब IITians होंगे, एंड दे एक्चुअली टीच भगवद गीता वेरी नाइसली एंड हेल्प प्रॉपरली, दे हेल्प कि हम कैसे उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। So I think that's it from my side, and I think I have already taken much time. I have gone beyond time in fact. नहीं, अगर आप ऐसे बोलते जाते तो हम लोग तो बैठ के सुन लेते बहुत ज्यादा, बट आई थिंक लिमिटेशन है, आप भी इतना नहीं बोल सकते हो। और बट फिर भी जो भी आपने शेयर किया है बहुत ही ज्यादा अहम चीजें हैं जिस पे हमें अमल करने की जरूरत है, जैसे सुबह उठना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी हम छोड़ देते हैं इन चीजों को बीच बीच में। और तो बहुत बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है। और मूड्स ऑफ नेचर और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एक ध्यान देने वाली बात है। एक अपने आप के ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन और एनालाइज करने की बात है कि हम कौन से मूड में हैं, और एक चेक भी कर सकते हैं जब हमें एक अवेयरनेस होगी कि हम ये हैं, वी आर इन दिस, सो वी नो नाउ के एटलीस्ट वी नो कि हम कौन से मूड में हैं। एंड ऑफ कोर्स some of the ways that you said कि कैसे आ सकते हैं सत्व गुण में, अपने आप को कैसे उस मूड में ला सकते हैं, मूड में ला सकते हैं। तो वेरी वेल कवर्ड विज्ञानी, वेरी वेल कवर्ड। So if there is any question from your end, please go ahead, raise your hand and go ahead. Like if Swathar is asking like how to get in touch with Gita Quest, so I'll share registration link with I think Sadhana ji, so maybe you can add Yeah, I will add in my this thing Insta पे, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि आप लोग सब फॉलो करते ही हैं, तो इंस्टा पे मैंने आज भी जो पोस्ट डाली है उसमें गीता क्वेस्ट करके डाला हुआ है, बट मे बी आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, 50-60,000 लोगों का है। सो आप मुझे कांटेक्ट करिए, तो मैं आपको लिंक जो है आपको शेयर कर दूंगी आपको। एंड we have a page. Okay, he doesn't use Instagram. So you can get in touch with me. You message me, I will get in touch with you. अथर्व, आपने मैसेज किया था मुझे याद है, बट मैं बिजी थी इसलिए आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाई। So I will message you, don't worry. और दूसरा के फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही अच्छी चीज है, एक आपको लाइफ अच्छे से जीने का एक तरीका बता रही है, तो बिल्कुल सीखने का एक प्रायोरिटी में आपको ये सीखना चाहिए, तो डू दैट। Yeah.
So thank you, Devyani. If there is any question I would like to take, otherwise let's wind up and let's. It's such a bliss to listen to these beautiful words and the knowledge that you shared from Geeta. Thank you so much, Sadhana ji. So I think there are no more questions. So thank you so much for inviting me, and hope we'll connect again in the future. Thank you, thank you, thank you, thank you, Devyani. Thank you everyone for joining. This whole thing will be put on YouTube. The name of the channel is Infinite Ripples. Infinite Ripples और एक channel है, but this is another Infinite Ripple from India. So I will share with you the link once I put it on YouTube, so that you can share it with your friends and loved ones, so that they can also benefit from the same. Thank you so much. Bye bye. Thank you.